So today I am going to discuss about, is India getting closer to getting permanent seat in UNSC, United Nations Security Council? So I will start elaborating the question. So India is one of the founding members of UN in 1945. India has done its part to maintain peace in the world. India has never started a war. India has fought many wars with its neighbor like China and Pakistan. But India never started a war. Even knowing that they may start war, but India waited till they attacked. Then we started. Because we never think of attacking first. India has never attacked any country in its history from ancient time, excepting some South Indian kingdom which have captured Indonesia and many other countries, and they were also gentle. But coming in modern time, after UN, making of UN, we didn't attack any country. India is a country of 130 crore people out of 700 crore people in the world. So 1/7 people in the world, they should get their शेयर इन द वर्ल्ड पावर. सो यूएन में तो 130 करोड़ बंदों को उनका शेयर मिलना चाहिए. इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी एंड अ समझदार डेमोक्रेसी है, बिल्कुल ठीक है, सेंसिबल डेमोक्रेसी, नॉट लाइक अ कंट्री लाइक चाइना विच इज रूल्ड बाय ए सिंगल पार्टी. सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री शुड गेट इट्स राइट एज यूएन इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन. इट्स नॉट ऑटोक्रेटिक, किसी एक की नहीं चलती वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे वोट होती है हर चीज़ के लिए. सो इंडिया शुड गेट इट्स पार्ट इन दैट. अब व्हाट इंडिया इज डूइंग टू गेट यूएनएससी परमानेंट सीट? सो इंडिया इज पार्ट ऑफ G4 group of 4 countries which are supporting each other in getting UN permanent seat. In that 4 main countries are there: Germany, Japan, India and Brazil. All the 4 countries have developed exponentially after making of UN. UN was made in 1945 and now it is 2020. So it is almost 75 years. So 75 years is a lot of time. In 75 years everything changes, and right now you can see there is in Cold War there was bipolar world, US and USSR. Then it came at hegemony of US, but right now it is a multipolar world, and G4 countries are holding their part. So India's diplomats are working very nicely. They are developing their soft power in countries of Africa and Latin America, and also in North America and Central Asia. So we will work very hard. Our diplomats are working hard. So क्या होगा कि जब भाई देर वोटिंग के लिए 2/3 हमें वो चाहिएगी वहाँ पे यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिएगी. और वन अदर थिंग के जो पांचों द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी दैट आर फ्रांस, यूएस, यूके, चाइना एंड रशिया, they should also support us. So 4 countries are already supporting us. Russia is our close friend, you can say brother of India. Russia is providing with good arms to India. And even if you don't know, I am sharing an incident with you. When there was Bangladesh liberation war, जब बांग्लादेश हमने आज़ाद करा था, so Pakistan was friend of US. So US has sent aircraft carrier to India कि इंडिया की नेवी को रोकने के लिए. बट उसी टाइम इंदिरा गांधी हैज साइंड फ्रेंडशिप ट्रीटी विद रशिया 2 साल पहले उससे. तो जब रशिया के साथ ट्रीटी होगी तो रशिया ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया को बचाने के लिए भेज दिया, और उससे उनका रुक गया और इंडिया वॉन द वॉर एज वी ऑल नो. सो रशिया इज आवर क्लोज पार्टनर, इट इज आवर ब्रदर. नाउ कम टू यूएस. राइट नाउ आवर रिलेशन विद यूएस इज गुड. मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रम्प आर गुड फ्रेंड्स ऑल्सो. सो US is supporting us. Obama has also supported us in getting UN permanent seat. France is supporting us. France is giving us Rafale, the best fighter jet of its company Dassault. So France, UK is supporting us. Okay, so 4 countries are supporting us. One country not supporting is China, because China is our neighbor. It thinks that there should be only our hegemony in Asia. But it will be not like this. India and China trade are going and going. Right now we have 100 billion trade. So when trade will increase, so India can
make pressure on China so that they will support us. And Indian economy is also increasing. और जब हमारी इकोनॉमी पूरे देश पे कब्जा करेगी, then who can stop us becoming a UNSC member? UNSC will call us that please come become our member. राइट अभी हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी चढ़ाई पे है. बाय 2050 वी विल बी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. सो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को कौन रोकेगा? सो ऐसे वी विल बिकम अ यूएनएससी परमानेंट मेंबर. और बनना है ये निश्चित है इंडिया का यूएनएससी परमानेंट मेंबर बनना. बस थोड़ा टाइम बचता है, उसमें हम बन जाएंगे. नॉन परमानेंट मेंबर वी हैव 7 times नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. 14 members are there who are non permanent for 2 years tenure. This time China is supporting us for non permanent. So देखो वो non permanent के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं, but they are not supporting us for permanent, because if they will support for permanent member then जैसे चाइना अभी हमने धारा 370 250 they what they did, they called a secret meeting of UNSC, but if India would be a member so they couldn't call the meeting. वो मीटिंग नहीं बुला पाते. और इंडिया, उनको पता है कि इंडिया अगर इंडिया यूएनएससी मेंबर बनेगा तो पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा होगा. और ऐसा कोई देश नहीं चाहेगा कि पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा हो. अगर यूके चाहता पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा हो तो पूरे वर्ल्ड को गुलाम नहीं बनाता. उन्होंने पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाया, उनके खून चूस लिया. जब वो इंडिया में आए, बंगाल में उस टाइम 2-3 करोड़ आदमी मरे, वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई. ऐसे ही जो ये देश है चाइना, रशिया को नहीं कहूँगा, यूएस भी इन्हीं देशों में से है जो सिर्फ अपने भला चाहते हैं. और चाइना तो बहुत गंदा देश है, ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं. इंडिया और ऐसा वर्ल्ड गुरु शुरू से नालंदा यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, वट देव डन. नालंदा यूनिवर्सिटी ने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने प्राइवेट रखेंगे. दूर दूर से पढ़ने आते थे वहाँ लोग, और उनको यहाँ से अच्छी शिक्षा मिलती थी. और आगे वाले टाइम में भी जब इंडिया आगे निकलेगा, पूरे वर्ल्ड की बिल्कुल अच्छे से सफाई करेगा. गरीब अपने देश के हम गरीब पहले ख़त्म करेंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट हम पहले ही सब पूरे वर्ल्ड की गरीबी मिटा देंगे. पहले हम अपनी गरीबी मिटाएंगे, मिटेगी गरीबी अपनी. इंडिया में एक से एक अच्छा बंदा भी बचा हुआ है, ठीक है. सो ऐसे वी विल बी वर्ल्ड पावर. और वर्ल्ड पावर जब इंडिया वर्ल्ड पावर बनेगा, सो पूरा वर्ल्ड देखेगा कि ऐसे वर्ल्ड पे रूल तो हम नहीं करेंगे इंडियंस, क्योंकि हम तो सबका भला ही चाहेंगे. अलग तरीके का वर्ल्ड होगा उस टाइम, और सब रिलीजन को रिस्पेक्ट होती है इंडिया में, ठीक है. सेकुलर कंट्री है, सबसे पुराना रिलीजन है इंडिया का. रिलीजन क्या, जो इंडिया में रह रहा है वो हिंदू है. हिंदू रिलीजन भी कह लो या कुछ भी कह लो, पर जो इंडिया में रह रहा है वो अच्छे, काफ़ी अच्छा वो रहता है. वैसे बंदा तो कोई बुरा नहीं होता, पर जैसे अभी आप देख ही सकते हो कि फ़र्क पड़ता है. इस बात में मैं कंफ्यूज हुआ, मैं मानता हूँ, ठीक है. थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हुआ, इसमें थोड़ा सोचूंगा. तो ठीक है, मैंने यूएनएससी का आपको बताया काफ़ी. लास्ट में थोड़ा सा बस फिलोसफी की थोड़ा बता दिया मैंने, जिसमें कि अभी मैं खुद ज़्यादा माहिर नहीं हूँ फिलोसफी में. चलो, थैंक यू, बाय बाय.